Hello students, this is your Shashank sir and today we are at the day 5 of our learning revision program और आज day 5 का टॉपिक है excretive products and their elimination, right? 3 questions का weightage है, right? बहुत अच्छा चैप्टर भी है, conceptual थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत चीज़ें याद रखना पड़ता है. Let us very quickly go through the entire chapter line by line, ठीक है? For a very quick summarized revision, ठीक है? Now, when we start with excretive products and their elimination, पहला का बात क्या है कि excretive product क्या है, right? और कौन सा excretive product हमको eliminate करना होता है, ठीक है, right? So, when we talk about excretive products or what is its definition, we can define excretion, right? We can define the excretion as the removal of metabolic waste, removal of what waste? Metabolic waste, removal of metabolic waste and nitrogenous waste, right, which is accumulated during different metabolic reactions and due to excessive ingestion. समझ में आया? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट ही कि पहले आप तो एक्सक्रीशन किसको बोलते हो, करेक्ट है? एक्सक्रीशन क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट that is definitely coming from different metabolic activities of the body as well as nitrogenous waste accumulated during different metabolic reactions या फिर excessive ingestion की वजह से भी क्या होता है? waste form होता है in the form of metabolic waste and nitrogenous waste. जब हम इन्हीं metabolic waste और nitrogenous waste को body से remove करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं excretion. तो हमारे यहाँ पे excreted products क्या बन गया? हमारे यहाँ पे excreted products बन गया metabolic waste which includes water, carbon dioxide, sodium, potassium, phosphate, etc. along with our nitrogenous waste which are ammonia, urea and uric acid. ठीक है? So these are our waste that we need to eliminate. और हमारे यहाँ पे फोकस किस पे रखा गया है? Nitrogenous waste. So quickly to summarize, what is ammonia, what is urea, what is uric acid? Correct है? When you talk about ammonia, it is the primary nitrogenous waste produced in all living organism. This is the primary nitrogenous waste produced in all living organism. प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो अमोनिया रिलीज बनेगा ही बनेगा. सो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेगा. कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज इट्स कैरेक्टर? इट इज हाईली टॉक्सिक. दिस इज द फर्स्ट, हाईली टॉक्सिक. एंड सिंस इट इज हाईली टॉक्सिक, इट इज नॉट एट ऑल स्टोरेबल इन द बॉडी. आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट स्टोर इट इन आवर बॉडी. करेक्ट है? हाईली टॉक्सिक है, नॉट स्टोरेबल इन आवर बॉडी, बट it is readily soluble in blood. Statement: this is readily soluble in blood and this thing mixes so good with the blood that you require a large amount of water, for its removal. You require a large amount of water for its removal. Correct hai? Right? So it is a primary nitrogenous waste produced in the living organisms. It is highly toxic, not storable in the body. It is not storable in the body. It is readily soluble in the blood and it requires a very large amount of water for its removal. It requires a very large amount of water from its removal. Ammonia can be excreted out as ammonium ion. ये ammonium ion की तरह भी इसको body surface से, कहाँ से? Body surface and gills. Ammonia can be excreted out as ammonium ions through body surfaces and gills where kidneys do not play a significant role in its removal. Kidneys do not play a significant role in its removal. ठीक है? Right? So ammonia secreting organisms amnotelic होते हैं. ठीक है? इनके एग्जांपल्स याद रखना है आपको. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं तो यहाँ तक भी बोलूंगा कि इनके एग्जांपल्स आप एनिमल किंगडम से भी रिलेट करके लेके आए. ठीक है? क्लियर है? राइट? सो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, दीज आर ऑल दैट आर सिक्रेटिंग योर अमोनिया. नेक्स्ट आता है क्या? यूरिया. नाउ यूरिया देखिए, वेयर यूरिया इज प्रोड्यूस्ड. यूरिया is produced in the liver through ornithine cycle. ठीक है? यूरिया is produced in the liver through ornithine cycle. ठीक है? ornithine cycle जहां पे इसका ब्रेकडाउन होता है, इसलिए लीवर में यूरिया का परसेंटेज या फिर कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है. यूरिया का कंसेंट्रेशन लीवर में ज्यादा होता है. तो इसका कैरेक्टर क्या है? It is less toxic. It is less soluble in blood. It requires less amount of water. For its removal and small amount of urea is storable in our body. ठीक है? So it is less toxic, less soluble in blood, require less amount of water for its removal. Small amount of urea is storable in our body. और अगर आप बॉडी पे स्टोर करते हो, कहाँ स्टोर कर सकते हो? Either you can store it in the blood, or you can store it in the kidneys, If you are storing in the blood, it is helping you to maintain what? It is helping you to maintain your pH. And if you are storing it in the kidney, it is helping you to
मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। ये जो हमको बाद में काउंटर करंट मैकेनिज्म में जाके इसके बारे में मालूम चलेगा। क्लियर है, राइट? सो इट इज, व्हाट आर द कैरेक्टर्स? इट इज लेस टॉक्सिक, less soluble in blood, require less amount of water for its removal, small amount of urea is storable in our body, right? Blood and kidney में स्टोर कर सकते हो, blood में करने से maintains pH, kidney में करने से maintains osmolarity, ठीक है, right? Organisms excreting urea, ureotelic organisms है, mammals है, marine fishes है, adult amphibians है, right? etc. correct है, right? So these are certain examples, these are certain examples of organisms which are ureotelic, and these are the characters, right? In our body it is produced in liver through ornithine cycle, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका यूरिक एसिड, एंड यूरिक एसिड का कैरेक्टर क्या है? इट इज द एंड प्रोडक्ट, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इट इज लीस्ट टॉक्सिक, इट इज लीस्ट टॉक्सिक, इट इज लीस्ट सोल्यूबल, इट इज लीस्ट सोल्यूबल, एंड इट रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल, इट रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है, राइट? सो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक आ जाता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और अगर आपने देखा है एक्सक्रीशन थ्रू एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जितना एमोनिया से यूरिक एसिड तक चला आया उतना ही वाटर का रिक्वायरमेंट कम हो गया। दैट मीन्स यू कैन ट्रेस इट थ्रू द एवोल्यूशनरी लाइन एज वेल। जितना एवोल्यूशन वाटर से टेरेस्ट्रियल की तरफ चलता गया उतना ही वाटर रिक्वायरिंग जितना भी प्रोसेस था सब रिड्यूस होता गया। सो एक्सक्रीशन, इफ यू आर एक्सक्रीटिंग एमोनिया, इट इज ए वाटर रिक्वायरिंग प्रोसेस, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है। यूरिया लेस टॉक्सिक, थोड़ा वाटर लेस चाहिए एमोनिया से, यूरिक एसिड और भी कम चाहिए, ठीक है। तो यूरिक एसिड वाले जो निकलते हैं ना, ठीक है, ये आपको कैसे देखने मिलेगा? इट कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू पैलेट और पेस्ट, पैलेट्स दाने की तरह या फिर पेस्ट की तरह यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मिलता है, करेक्ट है। सो दीज आर द थ्री, यूरिया, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ कमिंग टू a survey of the animal kingdom, when you take a survey of the animal kingdom, and this is very very important, ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन इधर से ही आता है, ठीक है, राइट? सो अ सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स। मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स क्या है? दीज आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, whereas in vertebrates they have complex tubular organs called as kidneys, ठीक है। Some of these structures are mentioned here. Protonephridia, पहला क्या है? Protonephridia और flame cells are the excretory structures in Platyhelminthes, right, such as Planidia, Rotifers and some annelids, and the cephalochordate Amphioxus. Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation. Nephridia are the tubular excretory structures of earthworms and other annelids. Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance, again osmoregulation. Malpighian tubules are the excretory structures of the most insects. Most insects में Malpighian tubules है, right, including cockroaches, right? Malpighian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. And last में आपको क्या मिलेगा? Antennal glands और green glands, they perform the excretory function of the crustaceans like prawn, ठीक है। सो ये प्रॉन में आपको हेल्प करता है, करेक्ट है, राइट? सो अल्टीमेटली इन दिस सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम आपको क्या क्या याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, किडनीज, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स कहाँ पे? प्लैटीहेल्मिन्थिस में, प्लानेरिया, और कैसे एकदम खास से याद रखना है? रोटिफर्स एंड सेफालोकॉर्डेट एम्फियोक्सस, प्राइमरली बीइंग कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। उसके बाद क्या आता है? नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनिलिड्स। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड आयनिक बैलेंस। उसके बाद आता है Malpighian tubules आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। Malpighian tubules हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। उसके बाद अल्टीमेटली एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्मिंग एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, ठीक है। सो ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द आवर ह्यूमन में जब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो आपको पेयर में बीन शेप्ड किडनीज दिख जाएगा, पेयर में बीन शेप्ड किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर दिख जाएगा, पेयर ऑफ यूरेटर दिख जाएगा, फिर आपको यूरिनरी ब्लैडर दिख जाएगा और फिर आपको क्या दिख जाएगा? यूरेथ्रा। सो दिस is our excretory system, whereas the main excretory organ is the kidneys. The main excretory organ is our
kidneys. So when you look at the structure of the kidneys, ओवरऑल इसका लेंथ कितना है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ आता है, विथ आता है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस आता है 2 to 3 सेंटीमीटर, एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम होता है और कलर क्या होता है रेडिश ब्राउन. ठीक है, इसका क्वेश्चन इधर से बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन. पोजीशन से बनता है. पोजीशन से क्या क्वेश्चन बनता है कि इट लाइज बिटवीन, कहां पे, लास्ट थोरेसिक दैट इज द T12 एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, ऑन द लास्ट थोरेसिक, on the last thoracic that is T12 and between third lumbar vertebrae L3, right, along the dorsal inner wall of the abdominal cavity. This line is very important, along the dorsal inner wall of the abdominal cavity. ठीक है, this is along the dorsal inner wall of the abdominal cavity. ये अगर आपका abdominal cavity है तो ये साइड में dorsal walls के साथ ये क्या रहता है, चिपक के रहता है. ठीक है, इसको रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी भी बोलते हैं. सो इट लाइज बिटवीन द लास्ट थोरेसिक T12 and third lumbar vertebrae along the dorsal inner wall of the abdominal cavity, which is also called as the retroperitoneal cavity. नेक्स्ट आता है कि उसका अगर हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, राइट, उसका अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, राइट, किडनी 3 लेयर में बटा हुआ है. द किडनी हैज 3 लेयर्स, 3 आउटर लेयर्स. एक है रेनल फेशिया, आउटर मोस्ट, बीच में रहता है एडिपोस टिश्यू मिडिल का, एंड लास्ट में रहता है रेनल कैप्सूल. ठीक है, सो आउटर इज रेनल फेशिया, बीच का एडिपोस एंड थर्ड लेयर होता है आपका रेनल कैप्सूल. जब आप किडनी का सरफेस को ट्रेस करेंगे, व्हेन यू आर ट्रेसिंग द सरफेस, ठीक है, ट्रेसिंग द सरफेस, ऐसे करके करके नियर टू द इनर कॉन्केव साइड, नियर टू द इनर कॉन्केव साइड आपको एक नॉच दिखेगा, एक गड्ढा दिखेगा, लाइक दिस नॉच, राइट. दिस नॉच इज नथिंग बट योर हिलम. दिस नॉच इज नथिंग बट योर हिलम. ये क्या है, दिस इज योर हिलम. Right? What is the hilum? Hilum serves as an entry and exit point for blood vessels and nerves. सारे blood vessels और nerves इसी के थ्रू एंटर करते हैं, इसी के थ्रू एंटर करते हैं. ठीक है, राइट. टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द हिलम, अब अगर आप हिलम के पीछे आ जाओ, अगर आप हिलम के पीछे आ जाओ, आपको एक ब्रॉड फनल शेप, दिस स्ट्रक्चर, एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट. टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द हिलम यू हैव अ ब्रॉड फनल शेप्ड एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज द पेल्विस. तो ये एरिया आपका क्या हो गया, दिस एरिया इज योर पेल्विस, दिस एरिया इज योर पेल्विस. ठीक है, पेल्विस. एंड अल्टीमेटली पेल्विस से क्या निकल के आता है, पेल्विस से निकलता आता है यूरेटर. पेल्विस से क्या निकल के आता है, यूरेटर. क्लियर है, राइट. सो दिस इज द एक्सटर्नल सरफेस, राइट. कमिंग टू दिस, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर. जब आप इंटरनली इसको काटोगे आपको क्या मिलेगा, आउटर कॉर्टेक्स, आपको आउटर कॉर्टेक्स मिलेगा एंड इनर मेडुला मिलेगा. When you look at inner medulla, the inner medulla, this portion is the inner medulla, right? Inner medulla divides into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 to 12 conical masses, 8 to 12 conical masses. और ये जो triangular shape है, these are renal या फिर medullary pyramids. These are renal और medullary pyramids. Medullary pyramids कहाँ पे project होते हैं? Medullary pyramids projects into small spaces. Medullary pyramids projects into small spaces. That is called as calyx. इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स. और कैलिक्स में पहले कौन सा कैलिक्स आएगा, माइनर कैलिक्स, उसके बाद कौन आएगा, मेजर कैलिक्स. ठीक है, नाउ दिस माइनर कैलिक्स एंड द मेजर कैलिक्स दे ओपन इनटू दिस पेल्विस रीजन, they open into this pelvis region. This region पे खोलता है pelvis region, right? And this pelvis region leads out towards a ureter. ये ऐसे ureter में निकल के आता है. It leads out towards the ureter. Ureter leads to urinary bladder and urinary bladder leads to urethra. ठीक है, so the inner medulla divides into कितना 8 to 12 conical masses which is called as renal medullary, renal या फिर medullary pyramids which projects into calyx. पहले minor उसके बाद major. This opens into the pelvis. Pelvis opens into ureter. Ureter से क्या आता है, urinary bladder, और urinary bladder से urethra. So this is the pathway of uron. When you look at the outer cortex, ये outer cortex है ना, ये outer cortex it extends inside the medulla. This outer cortex extends inside the medulla, right? As columns, ऐसे column की तरह अंदर की तरफ आते हैं, as columns. It extends into the medulla as columns. These are called as columns of Bertini. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं columns of Bertini. Clear है? So this was the internal structure. ठीक है, right? उसके बाद when you look at the functional unit, when you look at the functional unit of a kidney, it is nothing but your nephron. It is nothing but your nephron. ठीक है, so nephron is the functional unit of kidney. ठीक है, it is also called uriniferous tubule and there is 1 million in each kidney. Each kidney में कितना nephrons होते हैं? 1 million. 2 किडनी मिला के 2 मिलियन. करेक्ट है. और इसका एक खास बात है कि इसका रीजेनरेशन प्रॉपर्टी है नहीं. Right? So as you grow old,
द नेफ्रॉन्स ऑल्सो डीजेनरेट, ठीक है, इसलिए एज जितना ओल्ड ग्रो होते हैं उतना ही थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम दिखता है आजकल, बट ड्यू टू एक्सटर्नल वेरी एक्सटर्नल रीजंस दिस नेफ्रॉन्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड विदाउट नेचुरल कॉजेस, ठीक है, नेचुरल एजिंग के बिना भी किडनीज डिजीज के वजह से हो गया, मेडिसिन के वजह से हो गया, या फिर हमारे नेग्लिजेंस के वजह से दिस नेफ्रॉन्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, एंड सिंस नेफ्रॉन्स आर नॉट बीइंग रीजनरेटेड तो धीरे धीरे किडनी अपना जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो खो देता है, एंड इन एक्सट्रीम केसेस राइट द किडनीज बिकम डिसफंक्शनल, ठीक है, राइट। सो दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दिस इज द नेफ्रॉन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिफेरस ट्यूबल, देयर इज 1 मिलियन इन ईच किडनी, ठीक है। अभी दिस नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रेनल ट्यूबल्स, राइट। ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज तो है लेकिन वो कैपिलरीज का गुच्छा होता है ऐसे, ठीक है, एक इट इज जस्ट लाइक ए स्क्रंची, ठीक है, जो स्क्रंची जो हेयर बांधने के लिए यूज करते हैं वही स्क्रंची को अगर आप हाथ में ऐसे रख दोगे दैट इज योर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दैट इज द ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये क्या आता है, रेनल ट्यूबल्स में क्या है, आपको पहले क्या मिलेगा, बोमन्स कैप्सूल, द कप लाइक स्ट्रक्चर बोमन्स कैप्सूल, व्हिच इज फॉलोड बाय प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, दिस इज द कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, द नियरर टू द बोमन्स कैप्सूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल या फिर पीसीटी। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लूप ऑफ हेनले, यू हैव अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड यू हैव अ एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यूपिन स्ट्रक्चर, ऐसे यूपिन लाइक एक स्ट्रक्चर है, राइट, व्हिच इज द लूप ऑफ हेनले, उसका एक डिसेंडिंग आर्म है जो नीचे की तरफ जा रहा है और एक एसेंडिंग आर्म है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू अ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, ये भी क्या है, कन्वल्शन ही है, राइट, पेज खाया हुआ, लेकिन इट इज अ डिस्टेंट, इट इज अवे फ्रॉम द बोमन्स कैप्सूल, तो ये क्या हो गया, दिस इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, एंड मेनी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, मेनी DCTs ऑफ नेफ्रॉन्स open into a single collecting duct, तो याद रखिएगा एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है कलेक्टिंग डक्ट is part of many nephrons, it is a part of many nephrons, ठीक है। So the nephron is made up of glomerulus which is tuft of capillaries and renal tubules include Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, many distal convoluted tubule of nephrons open into a single collecting duct, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्लोमेरुलस है जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है ग्लोमेरुलस को, ठीक है, राइट, इसका जो एंट्री पॉइंट है, द एंट्री पॉइंट इज कॉल्ड एज द एफरेंट आर्टेरियोल, और इसका जो एग्जिट पॉइंट है व्हिच इज कॉल्ड एज द इफरेंट आर्टेरियोल। ये एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आता है, इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके जाता है। यही इफरेंट आर्टेरियोल जब नीचे आके इट रैप्स अराउंड द पीसीटी एंड देन अराउंड द डीसीटी, ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और जब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रन्स पैरेलल टू दी लूप ऑफ हेनले, इट इज रनिंग पैरेलल टू दी लूप ऑफ हेनले, तब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, इट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। क्लियर है, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। एंड दिस juxtamedullary and cortical nephron is based on two things, एक तो आपका लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दूसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। जिस वाले नेफ्रॉन में आपका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, एंड वासा रेक्टा प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द juxtamedullary nephron, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट कहां पे है, मेडुलरी रीजन में, ये कॉर्टेक्स रीजन, ये मेडुलरी रीजन, ये मेडुलरी रीजन में है। Whereas when you look at this one, इसमें लूप ऑफ हेनले क्या है, वेरी शॉर्ट है, एंड वासा रेक्टा यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, करेक्ट है। सो इफ द लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट एंड वासा रेक्टा इज एब्सेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। 85% ऑफ ऑल द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल फंक्शन, और इसको किडनीज के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। Whereas 15% ऑफ ऑल द नेफ्रॉन्स आर वाई जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, और इसको इमरजेंसी रेस्पॉन्स में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, one is your juxtamedullary nephron, another is your cortical nephron. Juxtamedullary nephron में loop of Henle is long, vasa recta is present, 15% of all nephrons, and it is utilized in emergency purposes. Whereas in cortical nephron, loop of Henle is short, vasa recta is absent, 85% of all, and it is utilizing the normal response. Clear है, ठीक है। Now coming to the main point,
किडनीज का फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है। ब्लड के फिल्टर करने के चक्कर में होता क्या है? यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज इज टू फिल्टर आवर ब्लड, क्योंकि ब्लड में ही हमको हमारा यूरिया मिलेगा, यूरिया को एलिमिनेट करना है, उसके चक्कर में हमको क्या मिलता है? यूरिन। नाउ दिस यूरिन फॉर्मेशन हैज 3 स्टेप्स। कितना स्टेप है? 3 स्टेप्स, राइट। द फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, which is followed by tubular reabsorption and which is followed by tubular secretion. It is followed by tubular secretion. So urine formation is divided into 3 steps. Glomerular filtration, ultrafiltration है, then you followed by tubular reabsorption, then by tubular secretion. Glomerular filtration आपको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। क्या क्या? द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ये बोमेंस कैप्सूल के ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इसके नीचे आएगा बिकॉज इट इज एपिथेलियल, एंड अगेन इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल विद पोडोसाइट सेल्स, इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल विद podocyte cells. So endothelium of the blood vessel, inner wall of the Bowman's capsule with podocyte cells, and the basement membrane in between them. These are the 3 layers of आपका क्या? आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर वॉल ऑफ द पोडोसाइट, ठीक है, सेल्स कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, सो दे मेक अप फिल्ट्रेशन पोर या फिर स्लिट्स। दे आर अरेंज्ड एज सच कि वहां पे फिल्ट्रेशन पोर या फिर स्लिट्स आता है, जिससे के वजह से ही हमारा ब्लड क्या होता है? फिल्टर होके आता है, ठीक है। और इधर से जब ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे कलेक्ट होगा, उसको हम लोग बोल देंगे क्या? उसको हम लोग बोल देंगे अल्ट्राफिल्ट्रेट। समझ में आया कि नहीं है? राइट। सो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स। क्या क्या? एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, सेकंड इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल विद मॉडिफाइड पोडोसाइट सेल्स, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। क्लियर है? सो दीज आर द 3 लेयर्स, करेक्ट। Now starting with the filtration, the process of glomerular filtration very simple है, process of glomerular very simple है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको ब्लड को फिल्टर करना है। अभी ब्लड तभी फिल्टर होगा जब वो ग्लोमेरुलस से ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्रॉस करके आएगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तो ये बीच का था, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अभी आप फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कैसे लाओगे? बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस, अगर आपने प्रेशर ग्रेडियंट कर लिया, सिंपल स्क्वामस है भाई, बोमेंस कैप्सूल भी ग्लोमेरुलस भी सिंपल स्क्वामस, बोमेंस कैप्सूल भी सिंपल स्क्वामस। फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, राइट। डिफ्यूजन कैसे होगा? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर लो। टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियल। डिफ्यूजन है ही उसमें, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी है, प्रेशर क्रिएट कर लो, डिफ्यूज भी करेगा, फिल्टर भी करेगा। समझ में आया? तो ये प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? उसका अरेंजमेंट ही प्रेशर क्रिएट कर देता है। कैसे? ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, इसका डायमीटर बड़ा है, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा है, इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर छोटा है। दैट मींस मोर ब्लड इज कमिंग इन, लेस ब्लड इज गोइंग आउट। मोर ब्लड इज कमिंग इन, लेस ब्लड इज गोइंग आउट। और जितना ज्यादा ब्लड आएगा और कम ब्लड जाएगा, धीरे धीरे मेरा ग्लोमेरुलस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मेरा ग्लोमेरुलस ब्लड से भर जाएगा। और जितना ज्यादा ब्लड से भरेगा, उतना ही ग्लोमेरुलस के वॉल पे क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। ग्लोमेरुलस के वॉल पे क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द वन दैट इज फोर्सिंग द ब्लड टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और ये कितना आता है इसका? +55 mmHg इसका वैल्यू आता है। अच्छा, ये फिल्ट्रेशन, ये जो इसको डिफ्यूज करने को चाह रहा है, राइट, ठीक है, राइट, इसको अपोज करने वाला भी 2 है। देयर आर 2 फोर्सेस दैट अपोज इट। पहला कौन है? राइट, दी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक, जितना भी पार्टिकल्स है, राइट, जितना भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, आपका कोलॉइड पार्टिकल्स है, वो क्या करेगा? वो ब्लड को पकड़ के रखेगा कि आप नहीं जा सकते, ठीक है, उसको पकड़ के रखेगा, अपोज करेगा उस फोर्स को। उस फोर्स का कितना वैल्यू है? माने उसका फोर्स का है 30 mmHg। अगेन वो फिल्टर होके कहां पे रहा है? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल का वॉल भी क्या करेगा? इसको प्रेस करेगा कि आप मत आओ अंदर पे। समझ में आया? तो नेक्स्ट अपोजिंग फोर्स क्या है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज अराउंड 15 mmHg। करेक्ट है, राइट। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है 55 mmHg, दैट इज ट्राइंग टू पुश द ब्लड थ्रू दी
filtration membrane into the Bowman's capsule, whereas two opposing force है blood colloidal osmotic pressure, right, 30 mmHg का, और capsular hydrostatic pressure from the Bowman's capsule that is 15 mmHg. इन तीनों को एक साथ में लगा दो, right, एक तुम्हारा पॉजिटिव फोर्स है और दो अपोजिंग फोर्स है, इन तीनों को मिलना से मेरे को क्या मिलता है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव है, इफ द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज पॉजिटिव, राइट, देन ब्लड क्या करेगा? वो डिफ्यूज कर जाएगा थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, राइट, और ब्लड फिल्टर हो जाएगा. लेकिन अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेगेटिव है तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड डिफ्यूज नहीं करेगा. समझ में आया? सो अंडर नॉर्मल कंडीशन द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज अराउंड 10 mmHg. ये क्या है? इट इज अराउंड 10 mmHg plus 10 mmHg, which leads to the formation of ultrafiltrate. क्लियर है? राइट. अच्छा, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर होता है, कितना अमाउंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेट फॉर्म होता है? ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 1/5, कितना? 1/5 ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ब्लड, ठीक है, दैट इज अराउंड 5000 ml, राइट. ठीक है, 5000 ml का अराउंड 1100 to 1200 ml ब्लड क्या होता है? फिल्टर्ड होता है. ठीक है, राइट. तो अराउंड 1100 to 1200 ml ब्लड इज बीइंग फिल्टर्ड. ठीक है, राइट. कितना अल्ट्राफिल्ट्रेट बनाता है? 125 ml अल्ट्राफिल्ट्रेट पर मिनट. 125 ml अल्ट्राफिल्ट्रेट पर मिनट. ठीक है, तो 125 ml अल्ट्राफिल्टर अगर पर मिनट बनता है, इसको पूरे दिन का हिसाब लगा दो तो वो कितना बता है? अराउंड 180 लीटर. अराउंड 180 लीटर अल्ट्राफिल्ट्रेट पर डे. 180 लीटर अल्ट्राफिल्ट्रेट पर डे इज कलेक्टेड इन दी Bowman's capsule. ठीक है. सो अल्टीमेटली दिस, राइट, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेट 180 लीटर है. ठीक है. नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट आर प्रॉब्लमेटिक. 180 लीटर हमारे पास इतना वाटर ही नहीं है रिलीज करने का. ठीक है, अगर इतना वाटर ही होता तो वी वुड हैव रादर गॉन विथ एमोनिया. ऑर्निथिन साइकिल का जरूरत ही नहीं होता. ठीक है, हमने ऑर्निथिन साइकिल बनाया क्यों? हमको एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए था दैट वुड हैव रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल. तो 180 लीटर अगर जमा हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम क्या, पानी भी तो है. तो इनके नेक्स्ट स्टेप में 99% ऑफ दिस 180 लीटर इज रीएब्सॉर्ब्ड. ठीक है. अच्छा, इसका यहाँ पे ये भी नहीं मीनिंग है कि इस 180 लीटर में सिर्फ आपका यूरिया दिख जाएगा. इसमें आपको बहुत ही बॉडी के लिए यूटिलाइजेबल चीजें भी है, एक्सेप्ट फॉर लार्ज प्रोटीन्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग फिल्टर्ड आउट. ठीक है, तो वो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, जो हमको चाहिए इस अल्ट्राफिल्टर से वो हम वापस खींच लेते हैं. सो 99% ऑफ द टोटल थिंग दैट इज बीइंग पुश्ड आउट इज अगेन टेकन बैक बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है, राइट. सो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में 99% ऑफ दिस एंटायर 180 लीटर इज टेकन बैक. सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव ओनली 1 to 1.5 या फिर 1.8 लीटर ऑफ यूरिन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है. नाउ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स विथ कहां पे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. एंड इफ यू रिमेंबर, दिस हैड ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. दिस हैड brush bordered cuboidal epithelium. That means you had cuboidal cells, right, with finger like microvilli. ठीक है, माइक्रोविलाई क्या कर रहा था? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा था. और क्यूबॉइडल सेल का फंक्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. तो एब्जॉर्प्शन तो कर ही रहा है, लेकिन अगर आपने माइक्रोविलाई दे दिया तो क्या करेगा? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करेगा. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में क्या होता है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट हैज brush bordered cuboidal epithelium. क्यों? What is the reason? Because it has brush bordered cuboidal epithelium. ठीक है, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80% अल्ट्राफिल्ट्रेट. 70 to 80% अल्ट्राफिल्ट्रेट फॉर्म होता है. ठीक है, एंड 70 to 80% अल्ट्राफिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, रीअब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, राइट. 70 to 80% ही यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, जिसमें वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ रीअब्जॉर्ब होता है. समझ में आया? करेक्ट है. सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है. कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है? 70 to 80%. 70 to 80% ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड, जिसमें आपका मेनली क्या है? वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अच्छा, क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, कैसे रीअब्जॉर्ब होता है? राइट, यू हैव अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, 100% रीअब्जॉर्प्शन. अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है. उसके बाद विटामिन, पॉजिटिव आयंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, ये सब कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसका क्या होता है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. दैट मींस वी हैव टू यूटिलाइज एटीपी. वायरस नेगेटिव आयंस सच एज बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये कैसे जाते हैं? पैसिवली चले जाते हैं. ये कैसे जाते हैं? पैसिवली. करेक्ट है,
राइट, एंड अल्टीमेटली देयर इज वाटर, वाटर गोज थ्रू ऑस्मोसिस। समझ में आया? सो proximal convoluted tubule maximum reabsorption 70 to 80% of the ultrafiltrate is reabsorbed here, जिसमें वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स बनता है, रीअब्जॉर्ब होता है। क्या क्या स्पेसिफिकली अमीनो एसिड ग्लूकोज 100%, मतलब पीसीटी के बाद आपको अमीनो एसिड और ग्लूकोज दिखना नहीं चाहिए, अगर दिख रहा है दैट मींस नेफ्रॉन में प्रॉब्लम है। करेक्ट है, 100% रीएब्जॉर्प्शन। विटामिन, पॉजिटिव आयंस कैसे जाएंगे? एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यू हैव टू पे मनी, एटीपी यूज करना पड़ेगा। करेक्ट है, वेयरएज नेगेटिव आयंस बाइकार्बोनेट और क्लोराइड कैसे जाएगा? पैसिवली चला जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में। एंड वाटर कैसे जाएगा? ऑस्मोसिस। करेक्ट है, सो दिस इज योर रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। कमिंग टू द नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप बन गया और असेंडिंग लूप बन गया। अभी डिसेंडिंग लूप मैक्सिमम किससे बनता है? थिन पोर्शन में। डिसेंडिंग लूप का क्या है? मैक्सिमम थिन, वायरस असेंडिंग लूप में थोड़ा सा थिन पोर्शन है, थोड़ा सा मैक्सिमम क्या है? थिक पोर्शन है। करेक्ट है, सो लूप ऑफ हेनले का जो थिन पोर्शन है वो किससे बनता है? सिंपल स्क्वामस। लूप ऑफ हेनले का थिन पोर्शन किससे बनता है? सिंपल स्क्वामस। और थिक पोर्शन क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, सो डिसेंडिंग लूप में थिन पोर्शन से क्या होता है? वाटर निकलता है थ्रू ऑस्मोसिस। वाटर निकलता है कैसे? थ्रू ऑस्मोसिस। वेयरएज इन दी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, बी इट थिन बी इट थिक, दोनों में से ही क्या निकल रहा है? NaCl। दोनों में से ही क्या निकल रहा है? NaCl। ओनली द प्रोसेस इज डिफरेंट। कैसे? थिन पोर्शन से जब NaCl निकलता है वो कैसे निकलता है? पैसिवली। व्हेयरएज थिक पोर्शन से जब NaCl निकलता है वो उसको कैसे निकालना पड़ता है? एक्टिवली। क्लियर है? सो दिस इज योर एब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। और मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन यही पे होता है आपका, मिनिमम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्या है? DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में आपको दो ही चीज याद रखना है कि देयर इज कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ टू थिंग्स। व्हाट इज दैट? एक इज सोडियम, अनदर इज वाटर। अगर बॉडी को जरूरत है तभी सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा, अगर बॉडी को जरूरत है तो वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, whereas there is passive reabsorption of what? Bicarbonate. So distal convoluted tubule में आपका क्या होता है? conditional reabsorption of sodium and water and passive reabsorption of bicarbonate होता है। ठीक है, लास्ट में आपका क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट में आपको ADH रिसेप्टर मिलेगा। ADH बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, NDH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट प्रिवेंट्स डायलिसिस, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ADH रिसेप्टर्स में अगर ADH आके बाइंड करते हैं, ठीक है, राइट, देन देयर इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सो ADH रिसेप्टर्स रहता है कलेक्टिंग डक्ट में, सो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीएब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रीएब्जॉर्ब होता है थ्रू डिफ्यूजन, which is required for maintaining osmolarity। ठीक है, राइट, सो कलेक्टिंग डक्ट में ADH रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, राइट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीएब्जॉर्ब्ड थ्रू डिफ्यूजन व्हिच हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। क्लियर है, राइट। सो दिस इज योर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यहां तक आते आते 99% ऑफ द मटेरियल जो हमारे बोमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हुआ था वो बॉडी में क्या हो गया? रीएब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, बट नाउ द क्वेश्चन इज ठीक है, देयर आर सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दैट नीडेड टू बी एक्सक्रीटेड, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बाईपास करना पड़ता है। ठीक है, वी बाईपास द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड वी डायरेक्टली पुट राइट द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द tubules, right, into the tubules. This is called as tubular secretion. ठीक है, and tubular secretion everything is an active process. Why? क्योंकि आपका जो blood vessels में जितना waste होगा वो हमेशा ही tubules जो nephrons में waste collect हो रहा है उससे कम ही होगा, right? So that means what? You are putting, if you are directly trying to put the waste from the blood vessels into the tubules, you are putting it against the what? Concentration gradient. Be it the PCT, LH, DCT, collecting duct, जो भी है वहां जहां इनके अंदर में आप लोग वेस्ट डाल रहे हो ब्लड वेसल से, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा ही है। दैट इज व्हाई द एंटायर ट्यूबुलर सीक्रेशन प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्टली पीसीटी में क्या क्या आप डायरेक्टली ब्लड से दे सकते हो? हाइड्रोजन, अमोनिया। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग पार्ट किससे बनता है? डिसेंडिंग पार्ट बनता है सिंपल स्क्वामस से।
राइट, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस, जिसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, राइट। तो इसमें तो आप एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रेशन का कोई बात ही नहीं आता है कि नहीं, ये करेक्ट है। तो लेकिन बट इसका असेंडिंग पार्ट इज मेड अप ऑफ क्यूबोइडल सेल्स, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन है, ठीक है। तो असेंडिंग में आप क्या देते हो, क्या सिक्रेट कर सकते हो, यूरिया, राइट। डीसीटी में क्या क्या सिक्रेट होता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, whereas collecting duct में क्या सीक्रेट होता है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, क्लियर है, राइट। सो इन केस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन द एंटायर प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस, राइट। पीसीटी में हाइड्रोजन एंड अमोनिया सीक्रेट होता है, आपके लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग में देयर इज नो सिक्रेशन, असेंडिंग में यूरिया सीक्रेट हो जाता है, डीसीटी में हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया सीक्रेट होता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट में हाइड्रोजन एंड पोटेशियम सीक्रेट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, clear है, right? So at the end of this process what you are forming is your urine, right? apart from that ये जो हम लोग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं, दिस लीड्स टू सम कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है, दैट कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स। अभी पीसीटी का क्या फंक्शन है, पीसीटी का दो फंक्शन है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड। हाउ डज इट मेंटेन द आयनिक बैलेंस, ठीक है, right? It maintains the ionic balance by absorbing sodium chloride and by absorbing bicarbonate, ठीक है, by absorbing mainly bicarbonate, ये अपना आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। और पीएच कैसे मेंटेन, ये आपका क्या बोलते हैं ना, आयनिक बैलेंस, सॉरी, आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम लोगों का पीसीटी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, सोडियम एंड क्लोराइड, बाय एब्जॉर्बिंग सोडियम एंड क्लोराइड, right, the the PCT is maintaining the what, it is maintaining the ionic balance। और pH कैसे मेंटेन करता है, by secreting hydrogen and ammonia, the pH is maintained by secreting hydrogen and ammonia and by absorbing bicarbonate, by secreting hydrogen and ammonia into the tubule and by absorbing bicarbonate, the PCT maintains the pH, ठीक है। Similarly when you come to loop of Henle क्या करता है, it helps to maintain the osmolarity of the medulla, it is helping to maintain the osmolarity of the medulla, कैसे, by absorbing water and sodium chloride and whereas secreting what, urea, ठीक है। तो NaCl और NaCl का absorption और secretion of urea करके हम लोग क्या कर रहे हैं, we are maintaining the osmolarity of the kidneys, ठीक है। डीसीटी क्या करता है, डीसीटी भी आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन करता है। डीसीटी कैसे आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है, बाय सीक्रेटिंग पोटेशियम एंड बाय एब्जॉर्बिंग सोडियम, बाय सीक्रेटिंग पोटेशियम एंड एब्जॉर्बिंग सोडियम आप क्या कर रहे हो, ठीक है, सीक्रेटिंग पोटेशियम एंड एब्जॉर्बिंग सोडियम, यू आर मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस। व्हेयरएज पीएच कैसे मेंटेन करते हो, बाय secreting hydrogen and ammonia and by absorbing bicarbonate, ठीक है, by secreting hydrogen and ammonia and by absorbing bicarbonate आप pH मेंटेन करते हो, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट तीनों ही करता है, कलेक्टिंग डक्ट आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है, कलेक्टिंग डक्ट pH भी मेंटेन करता है एंड कलेक्टिंग डक्ट आपका ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करता है। कैसे आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है, बाय सीक्रेटिंग पोटेशियम, कैसे pH मेंटेन करता है, बाय सीक्रेटिंग हाइड्रोजन, और कैसे आपका ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, बाय एब्जॉर्बिंग यूरिया, क्लियर है, राइट। सो दिस इज हाउ, राइट, द ट्यूबल्स हेल्प टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, पीएच, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ द बॉडी, करेक्ट है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्या है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपको 4-5 स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि द ह्यूमन किडनीज हैव द एबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन, द ह्यूमन किडनीज हैव द एबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन, कितना टाइम, अप टू 4 टाइम्स, द ह्यूमन किडनीज हैव द एबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन अप टू 4 टाइम्स, राइट। इसमें आपका वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ठीक है। दूसरा, थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज एन इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी, टुवर्ड्स द इनर मेडुला, दैट मीन्स आपने किडनी को डिवाइड किया, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेडुला रीजन है, आप कॉर्टेक्स से जितना मेडुला में जाओगे आपका जो कंसंट्रेशन है, द कंसंट्रेशन वुड स्टार्ट टू इंक्रीज, कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ता जाएगा।
आप जितना मेडुला से कॉर्टेक्स में जाओगे, मेडुला से कॉर्टेक्स में जाओगे, आपका रीजन उतना ही क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा. एज यू गो फ्रॉम medulla to cortex, the region would become that much dilute, but when you are coming from cortex to medulla, the region would become that much concentrated. So there is an increasing concentration of osmolarity towards the medulla. और ये increasing osmolarity कौन maintain करता है? The increasing osmolarity is maintained by NaCl and urea. It is maintained by NaCl and urea. ठीक है, NaCl and urea. Correct है, right? ठीक है. So when you look at it, ठीक है, कि ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता कैसे है? वेरी सिंपली इफ वी से, वेरी सिंपली काउंटर करंट मैकेनिज्म आपका चलता कैसा होगा? ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स. दिस इज योर कॉर्टेक्स, राइट? दिस इज द मेडुला, दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द मेडुला, राइट? और कॉर्टेक्स से कंसंट्रेशन आपका क्या होता है? कॉर्टेक्स में कंसंट्रेशन आपका डाइल्यूट होता है, और जितना आप मेडुला में आओगे उतना ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट? उतना ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एंड इट्स एंड विथ 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है, राइट? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या? आपका बोमेंस कैप्सूल, आपका मिल जाएगा नेफ्रॉन. ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या? दिस इज दी बोमेंस कैप्सूल. ठीक है, दिस इज दी पीसीटी, दिस इज दी लूप ऑफ एनले. ये लूप ऑफ एनले है, दिस इज लूप ऑफ एनले, दिस इज द डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ एनले, दिस इज द असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ एनले. ठीक है, दिस इज द डीसीटी एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, और इसके बाद आपको क्या देखना है कि द वासा रेक्टा, वासा रेक्टा ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये बन गया आपका वासा रेक्टा. दिस इज दी वासा रेक्टा, दिस इज दी वासा रेक्टा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, और ये वासा रेक्टा का क्या है? दिस इज वासा रेक्टास डिसेंडिंग आर्म एंड दिस इज वासा रेक्टास ascending arm. So if you look at this, if you look at this carefully, if you are looking at this carefully, ठीक है, right? When you look at the both arms of, when you look at the both arms of loop of Finlay, ये आर्म कंसिडर करो, ये आर्म कंसिडर करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है काउंटर. ठीक है, when you are considering the arm of the vasa recta, ये आर्म कंसिडर करो, ये आर्म कंसिडर करो, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है. क्या है? काउंटर. when you are considering individual, ये एक असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ एनले और ये डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा, दोनों को कंसीडर किया, तब भी क्या है? ऑपोजिट काउंटर. व्हेन यू आर कंसीडरिंग दिस वन, व्हेन यू आर कंसीडरिंग दिस वन, डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा एंड उसके पास क्या है? असेंडिंग डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ एनले और उसके पास क्या है? असेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा. ये दोनों भी क्या है? काउंटर. आप किसी भी एंगल से आप इसको मिलाओ, आप किसी भी एंगल से मिलाओ, सिर्फ लूप ऑफ एनले को रखो, सिर्फ वासा रेक्टा को रखो, या फिर लूप ऑफ एनले को रखो, वासा को रेक्टा पे रखो, ये सभी क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, जा रहे हैं. सो दे आर क्रिएटिंग व्हाट? अ काउंटर करंट. क्लियर है? राइट. नाउ इन सिंपल टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स आप क्या कर रहे हो ना? ये आपका अल्ट्राफिल्ट्रेट है, ये पीसीटी में गया. ठीक है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया. अभी ये पीसीटी से किधर आएगा? पीसीटी से आएगा आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में. अभी डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में आपको क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में जितना वो नीचे की तरफ जा रहा है, जितना वो नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या बढ़ रहा है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. और ये कंसंट्रेशन कौन मेंटेन कर रहा है? NaCl एंड यूरिया. ये जो कंसंट्रेशन आ रहा है इसको कौन मेंटेन कर रहा है? NaCl प्लस यूरिया. ठीक है, तो जितना ही फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, बाहर में क्या होता जा रहा है? बाहर में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, राइट? तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? डाइल्यूट. दिस इज डाइल्यूट एंड दिस इज कंसंट्रेटेड. तो अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ऑस्मोसिस वाला पार्ट देखा होगा, तो मैंने ये बोला था कि वाटर
वाटर जब ट्रैवल करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, व्हिच इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन. बेसिकली वाटर रन्स फ्रॉम अ डाइल्यूट रीजन टू अ कंसंट्रेटेड रीजन, डाइल्यूट रीजन टू अ कंसंट्रेटेड रीजन. तो इसमें बात यही है कि अगर आप डाइल्यूट हो और आपका बाहर का एरिया क्या है, कंसंट्रेटेड, तो आप भी क्या बन जाओगे, आप भी बनोगे क्या, कंसंट्रेटेड. ठीक है, टू मेंटेन दी इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन दी इक्विलिब्रियम. तो ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है, तो इसको कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंसंट्रेट होने के लिए सबसे इजी क्या है, क्या रिलीज करना पड़ेगा, वाटर. सो एज दिस अल्ट्राफिल्टर इज गोइंग डाउन इट इज रिलीजिंग व्हाट, वाटर. ये जब नीचे जा रहा है क्या रिलीज कर रहा है, वाटर. ये जब नीचे जा रहा है क्या रिलीज कर रहा है, वाटर. ये जब नीचे जा रहा है क्या रिलीज कर रहा है, वाटर. और कब तक रिलीज करेगा, जब तक इसके अंदर का कंसंट्रेशन डज नॉट बिकम इक्विवेलेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स कंसंट्रेशन. तो आप डाइल्यूट हो, बाहर का है कंसंट्रेटेड, आपको भी क्या बनना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड. सो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, आप क्या छोड़ोगे, वाटर. आप क्या छोड़ोगे, वाटर. आप क्या छोड़ोगे, वाटर. जितना नीचे जा रहे हो क्या छोड़ रहे हो, वाटर. बाय द टाइम यू रीच द यू बेंड यू हैव बिकम व्हाट, यू हैव बिकम हाईली कंसंट्रेटेड बन दिया और आपने क्या कर दिया, वाटर को बाहर निकाल दिया. राइट. सो दस देयर इज अ स्टेटमेंट कि द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू आयंस बट इट इज परमिएबल टू वाटर. ठीक है, तो वाटर क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है. और वाटर क्यों बाहर डिफ्यूज हो गया, क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट क्या था, कंसंट्रेटेड. क्लियर है. तो बाय द टाइम यू रीच द यू बेंड यू हैव बिकम हाईली कंसंट्रेटेड. अभी आप कंसंट्रेटेड हो, नाउ योर पाथवे गोज वेयर, upwards. Your pathway goes where, upwards. That means you are coming from the medullary region towards the cortex. तो मेडुला से जितना कॉर्टेक्स में जा रहे हो, एनवायरमेंट क्या होता जाएगा, एनवायरमेंट होता जाएगा डाइल्यूट. ठीक है, आप हो कंसंट्रेटेड बट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज व्हाट, डाइल्यूट. तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा, आपको भी बनना पड़ेगा क्या, डाइल्यूट. सो सबसे इजीएस्ट वे ऑफ बिकमिंग डाइल्यूट वाज टेक बैक द वाटर अगेन. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर. ठीक है, राइट. सो आप डाइल्यूट कैसे बनोगे, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, आपके अंदर का जितना भी सोल्यूट है उसको बाहर फेंक दो. आप सोल्यूट का नंबर्स भी डिक्रीज करोगे तो आपका सोल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे क्या भरा हुआ था, NaCl. राइट. तो जितना ये अल्ट्राफिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस फ्रॉम द यू बेंड, राइट, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग आर्म पे जितना चल रहा है, एनवायरमेंट क्या हो रहा है, डाइल्यूट. आप क्या हो, कंसंट्रेटेड. यू हैव टू बिकम व्हाट, डाइल्यूट. एंड यू आर बिकमिंग डाइल्यूट बाय हाउ, बाय रिमूविंग NaCl. जितना ऊपर जा रहे हो क्या छोड़ रहे हो, NaCl. जितना ऊपर जा रहे हो क्या छोड़ रहे हो, NaCl. जितना ऊपर जा रहे हो क्या छोड़ रहे हो, NaCl. जितना ऊपर गया क्या छोड़ा, NaCl. सो बाय द टाइम यू हैव रीच द DCT, आप फिर से क्या बन गए, डाइल्यूट. आप क्या बन गए, डाइल्यूट. राइट. सो यू हैव रिलीज्ड द NaCl एंड यू हैव बिकम डाइल्यूट. क्लियर हो गया. तो बाय द टाइम यू रीच DCT यू हैव बिकम डाइल्यूट. और DCT में पहुंचते पहुंचते डाइल्यूशन अराउंड 200 बन जाता है. कितना बन जाता है, 200. ठीक है, राइट. नाउ ये ही फिर से DCT किधर आएगा, फिर से किधर आएगा, फिर से आएगा तो आपका कलेक्टिंग डक्ट में. और कलेक्टिंग डक्ट फिर से किधर जा रहा है, फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन टू द मेडुलरी रीजन. अगेन द सेम थिंग रिपीट्स. जितना वो नीचे आ रहा है बाहर क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेटेड. ठीक है, और आप क्या हो, आप तो हो डाइल्यूट. सो आप जितना नीचे आओगे, व्हाट यू विल रिलीज फर्दर, यू विल फर्दर रिलीज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर देयर इज देयर. जितना नीचे आ रहे हो क्या छोड़ रहे हो, वाटर. जितना नीचे आ रहे हो क्या छोड़ रहे हो, वाटर. जितना नीचे आ रहे हो क्या छोड़ रहे हो, वाटर. बाय द टाइम यू कम आउट फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, राइट, एंड गेट कलेक्टेड इन द मेडुलरी पिरामिड्स, कैलिक्स से होके आप पेल्विक रीजन में चले आए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव कंसंट्रेटेड यूरिन. यू विल हैव कंसंट्रेटेड यूरिन 4 टाइम्स द नंबर आपको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन. ठीक है, राइट. हो गया आपका यूरिन कंसंट्रेटेड. दैट इज द फर्स्ट पार्ट, यूरिन हो गया कंसंट्रेटेड. राइट. नाउ अभी क्या करना है, अभी आपको इस वाटर और इस NaCl को ठिकाने लगाना है, बिकॉज ये तो अंदर आ गया. व्हाट हैपेंस विद दिस वाटर, ये जब वाटर आता है, ये वाटर डिफ्यूजेस इनटू द व्हाट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. और ये वाटर को लेके कहां चला जाता है, कॉर्टेक्स में लेके चला जाता है. ठीक है, इट गोस इनटू द कॉर्टेक्स रीजन. राइट. सो द वाटर दैट हैज बीन टेकन आउट from the descending loop of Henle goes into the ascending arm of vasa recta and it goes out through the cortex. What about NaCl? ये NaCl जो यहाँ पे है, ये NaCl भी कहाँ पे आता है, ये NaCl भी हमारे descending limb of vasa recta में आता है. अभी descending limb of vasa recta is also traveling from a dilute region towards a concentrated region, right? तो उनके अंदर में भी क्या होना पड़ेगा, concentrated होना पड़ेगा. तो what they do, they collect all the NaCl that has been released by the ascending loop of Henle. Thus the NaCl released
by the ions released by the ascending loop of vasa recta is collected by the ascending loop of Henle. All the NaCl that is released by the ascending loop of Henle is collected by the descending arm of vasa recta, is collected by the descending arm of vasa recta. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पूरा descending arm में ये vasa recta पूरा भर जाता है. By the time it reaches the U bend, the blood in the vasa recta or the fluid in the vasa recta is again what? It is highly concentrated. हो गया. असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ एनले से जो NaCl निकल रहा था वो डिसेंडिंग आर्म ने कलेक्ट कर लिया. ठीक है, वो खींच के लेके चला आया. वेरी गुड. लेकिन अगेन द सेम थिंग कि अभी ये डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा बिकम्स व्हाट? द असेंडिंग आर्म, एंड द असेंडिंग आर्म इज अगेन गोइंग फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड रीजन टू अ डाइल्यूट रीजन. राइट, तो ये कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट जा रहा है, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल क्या है? कंसंट्रेटेड. सो व्हाट इट डज व्हेन इट इज मूविंग अप टुवर्ड्स द असेंडिंग आर्म, इट इज मूविंग अप टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम. जितना ऊपर जाता है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वापस क्या छोड़ के जाता है? NaCl. जितना ऊपर जाता है वापस क्या छोड़ के जाता है? NaCl. जितना ऊपर जाता है क्या छोड़ेगा? NaCl. जितना ऊपर जाएगा क्या छोड़ेगा? NaCl. एंड thus the statement continues कि the NaCl released by the ascending loop of Henle is collected by the descending arm of vasa recta and it is returned back into the interstitium. It is returned back into the interstitium. ठीक है, करेक्ट है, राइट. सो अल्टीमेटली जितना बार इधर से यूरिन ट्रेवल करेगा वो क्या हो जाएगा? यूरिन करेगा, यूरिन हो जाएगा कंसंट्रेटेड. सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? आपका जक्सटामेडुलर नेफ्रॉन क्या हेल्प करेगा? जक्सटामेडुलर नेफ्रॉन वुड हेल्प इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन. अगर आपके पास जक्सटामेडुलर नेफ्रॉन नहीं है तो आपका क्या यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा? यूरिन फॉर्मेशन होगा, बट दोज यूरिन वुड बी व्हाट? डाइल्यूट यूरिन. ठीक है, सो दिस इज इन शॉर्ट द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, एंड दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म. क्लियर है? क्लियर है, होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन वेरी सिंपल है रेगुलेशन. ठीक है, रेगुलेशन यहाँ पे 3 लेवल पे होता है. एक हाइपोथैलेमस का होता है, एक रेगुलेशन आपका हार्ट आपका किडनीज का होता है, जेजी सेल्स ऑफ किडनीज इन्वॉल्व होते हैं, और एक रेगुलेशन आपका हार्ट का होता है. ठीक है, रेगुलेशन बाय हार्ट. ठीक है, राइट. सो व्हेन यू आर कमिंग विद द हाइपोथैलेमस, ठीक है, से सपोज द ब्लड प्रेशर इज डाउन. अगर ब्लड प्रेशर बॉडी में ब्लड प्रेशर डाउन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इज डाउन, तो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम भी डाउन होगा. जितना ब्लड वॉल्यूम डाउन होगा उतना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम रहेगा. जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम रहेगा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी क्या रहेगा? डाउन रहेगा. इफ द ब्लड प्रेशर इज डाउन, the blood volume is down, glomerular filtration rate is down, body fluid is down. This is detected by whom? This is detected by osmoreceptors. This is detected by whom? Osmoreceptors. ये osmoreceptor कहाँ पे present है? In the hypothalamus. ठीक है, in the hypothalamus. So ये condition कौन detect करेगा? Osmoreceptors. It is present where? In the hypothalamus. Hypothalamus किसको signal भेजेगा? Posterior pituitary. And posterior pituitary क्या release कर देगा? ADH या फिर vasopressin. Posterior pituitary would release a hypothalamic hormone that is known as ADH, which is also known as vasopressin. अभी ADH क्या करेगा? पहला काम, it binds with the distal convoluted tubule or collecting duct या फिर distal part of the tubules. ADH would bind with the distal parts of the tubule, ठीक है, and it will cause increased reabsorption of water. ठीक है, it will cause the increased reabsorption of water. So ADH binds with the distal parts of the tubule which cause increased reabsorption of water, and thus body fluid volume up हो जाता है. Next, ये ADH is also known as vasopressin. ये क्या करता है? It constricts the blood vessels. Blood vessels जो होता है ना, blood vessels जो होता है in and around kidney, इसको constriction, contraction करना चालू करता है. It constricts them. और जितना ये constrict होगा, blood flow उतना क्या होगा? Blood flow या फिर blood pressure उतना ही high होगा. ठीक है? So it constricts the blood vessels in and around kidneys, which causes the blood pressure to rise. जितना ब्लड प्रेशर राइज होगा ब्लड वॉल्यूम उतना राइज होगा, राइट. और जितना ब्लड वॉल्यूम राइज होगा उतना GFR रेट राइज होगा, और जितना GFR होगा उतना ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अप होगा. करेक्ट है, राइट. सो दस दिस इज हाउ द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, राइट. किडनी फंक्शन रेगुलेट करता है. एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये डाउन था, हाइपोथैलेमस ने अपना काम किया और सबको उठा लिया. बाय द टाइम इट बिकम्स करेक्ट, इट सेंड्स अ फीडबैक, इट सेंड्स अ फीडबैक टू हाइपोथैलेमस कि हमको और नहीं चाहिए. ठीक है, राइट, आपका रेगुलेशन. सो व्हेन इट गेट्स द फीडबैक कि रेगुलेशन नहीं चाहिए, सिचुएशंस अंडर कंट्रोल में है, तो हाइपोथैलेमस ये रेगुलेशन करना बंद कर देता है. दस द रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस इज अंडर द फीडबैक मैकेनिज्म. क्लियर है? सो दिस इज द रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस.
नेक्स्ट रेगुलेशन क्या आता है? नेक्स्ट रेगुलेशन आता है रेगुलेशन बाय द जेजी सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है, जेजी सेल्स ऑफ किडनी। अगर आपका सेम ब्लड प्रेशर डाउन, ब्लड वॉल्यूम डाउन, जीएफआर रेट, बॉडी फ्लूइड डाउन, इसके साथ साथ हमने क्या ऐड कर दिया? ब्लड आयनिक वॉल्यूम डाउन, ठीक है, ब्लड आयनिक वॉल्यूम डाउन। इफ दीज आर द कंडीशंस, इट इज डिटेक्टेड बाय द जेजी सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है, जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। दिस जेजी सेल्स ऑफ किडनी, इट रिलीजेस व्हाट? रेनिन। इट क्या रिलीज करता है? रेनिन। रेनिन एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय लिवर। रेनिन एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू क्या बन जाता है? एंजियोटेंसिन 2। नाउ एज सुन एज द एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म्स, ये दो काम करता है। एक तो दिस इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये पूरा ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन करता है। अलॉन्ग विथ ये इतना पावरफुल है एक ही, ये हार्ट को भी इन्फ्लुएंस करना चालू कर देता है। हार्ट के यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो बिकॉज इट इज अ पावरफुल कंस्ट्रिक्टर एंड हार्ट मसल्स तक ये कंस्ट्रिक्ट करवाने लगता है, हार्ट का कंस्ट्रिक्शन करवाने लगता है, तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर तो ऐसे ही बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जीएफआर रेट भी बढ़ेगा और ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। Apart from that, the angiotensin 2 it stimulates the adrenal gland, ये adrenal को stimulate करता है। adrenal gland क्या रिलीज करता है? It responds aldosterone, क्या रिलीज करता है? aldosterone। Now aldosterone binds to DCT and causes the conditional reabsorption of sodium, it causes the conditional reabsorption of sodium। conditional reabsorption of sodium कर दिया, that means it increases what? the blood ionic volume, it increases what? it increases the blood ionic volume। so if your blood pressure is down, blood volume is down, GFR is down, body fluid is down and blood ionic volume is down, it is directed by the JG cells of kidney which in response releases what? renin। renin acts on angiotensinogen, it is inactive, कौन secrete करता है? liver, and it is converted into angiotensin 1। angiotensin 1 किधर जाता है? lungs, और lungs में क्या मिलेगा? angiotensin converting enzyme which converts it into angiotensin 2। दो function है, two function। it is what? it is a powerful vasoconstrictor and it also stimulates adrenal gland। vasoconstrictor powerful है, level of the heart तक चला जाता है, करेक्ट है। it increases the blood pressure, it increases the blood volume, it increases the glomerular filtration rate and it increases the body fluid volume। हो गया। दूसरा एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड जो रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन बाइंड्स टू डीसीटी which causes the conditional reabsorption of sodium and thus increases the ionic volume, thus increases the ionic volume, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पूरा बॉडी का ये जितना भी प्रॉब्लम था इसको कवर कर लिया। नाउ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसका रेगुलेशन इज नॉट अंडर द फीडबैक कंट्रोल, ये फीडबैक कंट्रोल के अंदर में नहीं है कि फीडबैक लेता ही नहीं है, लेकिन ये मतलब ऐसा इंजन है स्टार्ट हो गया तो खुद ब खुद तो बंद होगा नहीं, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए हमको किडनी का थर्ड टाइप ऑफ रेगुलेशन चाहिए होता है, राइट, कि इन रिस्पॉन्स टू हाइपर एक्टिवेशन ऑफ रास, इन रिस्पॉन्स टू हाइपर एक्टिवेशन ऑफ रास, करेक्ट है, द वॉल्स ऑफ द एट्रिया रिलीजेस एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर या फिर एएनएफ। क्या रिलीज कर देता है? एएनएफ। नाउ एएनएफ एक्ट्स ऑपोजिट टू रास, ठीक है, वो वैसोकंस्ट्रिक्टर था, एएनएफ क्या है? वैसोडायलेटर, ब्लड वेसल्स को डायल्यूट कर देता है, डायलेट कर देता है एंड द ब्लड प्रेशर गोज डाउन, बैलेंस आउट, राइट। जितना भी एंजियोटेंसिन 2 है इसको डिग्रेड कर देता है, क्योंकि जब तक एंजियोटेंसिन 2 रहेगा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, ठीक है। सो इट डिग्रेड्स द रिमेनिंग एंजियोटेंसिन 2 एंड अल्टीमेटली इट इज आल्सो अ डाययूरेटिक हार्मोन व्हिच प्रमोट्स द वाटर रिलीज, ठीक है, क्लियर है, राइट। सो दस दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन बाय रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या फिर रास, एंड रेगुलेशन बाय योर हार्ट थ्रू रिलीज ऑफ एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर, ठीक है। सो दीज आर द रेगुलेशंस ऑफ किडनी फंक्शन एंड अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली वी हैव टू रिलीज द यूरिन, मिक्चुरेशन करना पड़ेगा, मिक्चुरेशन। नाउ मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, it is the process of release of urine, correct, and the neural process that is involved, that is called as the micturition reflex, that is called as the micturition reflex। अभी होता क्या है, ठीक है, पूरा urinary bladder is lined with stretch receptors, ठीक है, lined with stretch receptors। जब भी ये आपका ब्लैडर भरने लगेगा और ये ब्लैडर क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा, ब्लैडर स्ट्रेच करने के साथ साथ इसके ऊपर जितना भी आपका क्या है स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो क्या होगा? एक्टिवेट होगा, राइट। एज इट इज एक्टिवेटेड इट सेंड्स अ सिग्नल टू सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस, राइट, सीएनएस को सिग्नल करेगा, सीएनएस एक वॉलंटरी सिग्नल वापस रिलीज करेगा। स्ट्रेच रिसेप्टर्स, व्हेन ब्लैडर इज फुल द स्ट्रेच रिसेप्टर्स गेट स्ट्रेच
एंड दे सेंड अ सिग्नल टू हुम, सीएनएस। सीएनएस इन रिटर्न किसको सिग्नल क्या भेजेगा, एक वॉलंटरी सिग्नल भेजेगा, किसको, द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर करेगा, तो ये स्मूथ मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, एज इट विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल पुश द फ्लूइड डाउन द यूरेथ्रा, इट विल पुश द फ्लूइड डाउन द यूरेथ्रा, ठीक है, राइट, बट द यूरेथ्रा इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक इनवॉलंटरी है एक वॉलंटरी है, राइट, तो ये स्फिंक्टर इसको दरवाजे की तरह ब्लॉक करके रखता है, राइट, लेकिन द वॉलंटरी सिग्नल आल्सो सेज व्हाट, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फ्लूइड नीचे की तरफ आया और ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये बंद था, ये धीरे रिलैक्स होकर खोल गया, सो एज देयर इज कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड द रिलैक्सेशन ऑफ विंटर relaxation of urethral sphincter, this ultimately causes the release of urine, it causes the release of urine. So this is the micturition and this entire process is the micturition reflex. तो ultimately आपका urine release हो गया. अभी urine release हो गया, urine का certain characteristics है, ठीक है, there are certain characteristics of the urine, जैसे क्या है, right, कि on an average क्या होता है, on an average 1 to 1.5 liters, कितना, 1 to 1.5 liters of urine is released. The urine formed is light yellow, ये light yellow colored है, watery fluid है, which is slightly acidic, pH is 6, ठीक है, right, and has a characteristic odor. On an average 25 to 30 grams of urea is excreted out per day 25 to 30 grams यूरिया आप एक्सक्रीट करते हो, ठीक है, बट वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन. एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द किडनी. फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जो पीसीटी में ही 100% रीएब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपको यूरिन में मिल रहा है, यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज जो कीटोनूरिया करते हैं, ठीक है, इन यूरिन, करेक्ट है, राइट, ठीक है. सो अल्टीमेटली अगर आपको ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया अगर आपके यूरिन में हो रहा है, दिस माइट बी इंडिकेटेड ऑफ अनदर डिजीज व्हिच इज नोन एज डायबिटिस मेलिटस, ठीक है, डायबिटिस मेलिटस का ये क्या हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है, क्लियर है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मेन ऑर्गन दैट इज किडनी एंड दिस इज हाउ द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. इसके अलावा करेक्ट है, राइट, देयर आर सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, ठीक है, राइट, सच एज अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर, स्किन also help in elimination of excretory waste, right. Our lungs remove large amount of carbon dioxide, approximately 200 ml in a minute, and also significant quantities of water every day. Liver, the largest gland in our body, secretes bile containing substances like bilirubin and biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Most of these substances ultimately passes out with digestive waste, ठीक है. The sweat and the sebaceous gland, very important, sweat and the sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretions. Sweat produces by sweat gland is watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid, etc. ठीक है. Though the primary function, statement based question आता है, though the primary function of sweat is to facilitate cooling effect on the body surface, it also helps in removal of some waste mentioned above. Sebaceous gland eliminates certain substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum, ठीक है. This also provides a oily covering for the skin, ठीक है. Nitrogenous waste such as urea can also be excreted through saliva as well, ठीक है. So यहाँ से आपको मैट्रिक्स मैच टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन प्लस स्टेटमेंट बेस्ड. इससे क्या मिल जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, ठीक है, right. Now ending this chapter with disorder of the excretory system, right. So malfunctioning of the kidneys, right, can lead to accumulation of urea in blood, a condition that is called as uremia. तो पहला डिजीज क्या मिल गया, यूरेमिया, which is highly harmful and may lead to kidney failure, ठीक है. और किडनी फेलियर ऐसा चीज है ना, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, राइट. In such patients urea can be removed temporarily by a process called dialysis करके. During the process of hemodialysis the blood is drained from a convenient artery से आप drain करते हो and pump back into a dialyzing unit called artificial kidney.
द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एंटीकोआगुलेंट। आपको हेपारिन की तरह एंटीकोआगुलेंट देना पड़ेगा, नहीं तो एज सुन एज यू पंक्चर द वेसल वहां पे तो कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको पहले हेपारिन देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम composition as that of plasma except the nitrogenous waste। तो एक concentration gradient बन जाता है। जो पेशेंट का ब्लड है, जो किडनी फेल्ड है, राइट, उस पेशेंट के ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो ब्लड में हायर कंसेंट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट, डायलाइजिंग फ्लूइड में लेसर, देयर इज नो कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजन वेस्ट क्या करेगा, सिंपली हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा, देयर बाय क्लीनिंग द ब्लड विथ ईच टर्न of the cellophane tube that is there, right, except the nitrogen। This porous cellophane membrane tube allows the passage of molecules based on concentration gradient। As the nitrogenous wastes are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood। The clear blood is pumped back into the body through a vein after adding what, anti-heparin। This method is boon for thousands of uremic patients all over the world, but ultimately kidney failure can only be corrected with the help of, right, transplantation। Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of the acute renal failures or kidney failure। A functioning kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative, to minimize the chances of rejection by the immune system of the host। Modern clinical processes have increased the success rate of such complicated techniques, right। इसके अलावा ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही, यू हैव रेनल कैलकरी किडनी स्टोन, पानी कम पियोगे, पानी कम पीने से ये स्टोन बढ़ता है, ठीक है। सो किडनी स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स ऑक्सलेट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी, ठीक है। सो किडनी स्टोन्स और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट्स फॉर्म्ड विद द किडनी। एंड इसके अलावा लास्ट वाला क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्रोटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, ठीक है। सो दीज आर द 3 डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी दैट आर गिवन, राइट, डिसऑर्डर्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, करेक्ट है, right। so this was in short a quick revision of the entire chapter। entire NCERT का lines हमने पढ़ लिया है, थोड़ा स्पीड से हम गए हैं, but this is the final revision point। इसको आप रिवाइज करके डायरेक्टली आप यहाँ पे सेंटर पे आएंगे एंड यू विल गिव योर एग्जाम फॉर 90 क्वेश्चंस, ठीक है। सॉल्व होगा, चैप्टर छोटा है, इजी है, पढ़ो इसको, लाइन बाय लाइन पढ़ लो, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आया कि नहीं है, घुमा के दे, सिंपल दे, डायरेक्ट दे, स्टेटमेंट बेस्ड दे, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, राइट। सो हैव अ लुक एट दिस, कम टुमारो एंड गिव द एग्जाम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, थैंक यू सो मच।